ఎగ్జిట్ పోల్స్ ను కూడా బీజేపీ క్రాస్ చేసింది. నార్త్ టు సౌత్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీజేపీ గాలిని. కులాలు, వర్గాలు, మతాలకు అతీతంగా ఓటర్లు కమలానికి ఓటేశారు. ముస్లింస్ ఓట్లు ఎక్కువగా ప్రాంతాల్లోనూ బీజేపీ అభ్యర్థులు గెలిచారు. ఇక్కడ ఎస్పీ కాంగ్రెస్ కూటమికి సానుకూలంగా ఉంటుందని భావించిన మోడీ వేవ్స్ ముందు ఈ సమీకరణాలు వర్కౌట్ కాలేదు. బుందేల్ఖండ్ రీజియన్ లో బీజేపీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. ఇక్కడ 20 అసెంబ్లీ స్థానాలుంటే 20 నియోజకవర్గాల్లోనూ కమలం వికసించింది. ఇక్కడ ఎస్పీ కూటమి బీఎస్పీ అడ్రస్ గల్లంతైంది. ఇక అవధ్లోనూ బీజేపీ హవా నడిచింది. 75 సెగ్మెంట్లలో బీజేపీనే లీడ్. కమలానికి 54 సీట్లు దక్కాయి. ఎస్పీకి 15 సీట్లలో లీడ్లో ఉంటే బీఎస్పీ మాత్రం 6 సీట్లతో సరిపెట్టుకునే ఛాన్స్. యూపీ ఈస్టులోనూ కమలానిదే లయన్ షేర్. 74 సీట్లలో బీజేపీ 50 స్థానాలు దక్కించుకుంది. ఎస్పీకి 16, బీఎస్పీకి 8 సీట్లు దక్కే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక యూపీ నార్త్ ఈస్ట్ లో ఇక 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలపై ఎంఐఎం ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. अब आप खुद बताइए कि 368 सीट्स खाली थे, मैं तो सिर्फ 35 सीट पर लड़ा और उन 35 सीट में बहुत से ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई हमारे लड़ने की वजह से। संभल की सीट है मिसाल के तौर पर, वहां पर हमारे कैंडिडेट ने 61,000 वोट लिए, समाजवादी के कैंडिडेट ने कुछ 78,000 वोट लिए। तो ऐसे कई सीटें हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकुलर पार्टीज इनका वोट कहां पर गया। उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुए थे 14 में, कोई भी मुसलमान आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा कि एक भी मुसलमान वहां से कामयाब नहीं हुआ। अब ये खुद सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और मेरे सवाल का जवाब दें कि भाई आपका वोट कहां पर चला गया। क्या अभी भी वो उस पर गौर करेंगे या फिर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का कोई काम नहीं था वहाँ पर, लोग तंग थे समाजवादी पार्टी उनके करप्शन से, उनके ख़ानदानी झगड़े से। और यही वजह है कि मेरे ख्याल से 55-60 सीट पर समाजवादी सिमट जाएगी। और आखिरी बात यह है कि जो मायावती ने कहा है, इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन मायावती के इस जो उन्होंने इस इशू को उठाया उसका इलेक्शन कमीशन जवाब देगा, क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश की 4 मरतबा वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये मुझको कहना है। Well, I have always been stating this, that there was never and there will never be a Muslim vote bank. It has always been the opposite, because if there was a Muslim vote bank, the socio-education indicators of Muslims of Uttar Pradesh would have been much better. Muzaffarnagar would not have happened. अब ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है, यकीनन कहीं ना कहीं कमी रही होगी, मगर याद रखिए पहली मर्तबा जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मेरे सोच में ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी सीटें जीत जाऊंगा। मेरा मकसद ये था कि मैं लड़ूं इलेक्शन, अपनी पार्टी को मजबूत करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो चुका है। अब कोशिश करते रहेंगे, ज़िंदगी जिद्दोजहद का नाम है। अब कामयाबी मुझे नहीं मिलेगी इस दुनिया में, ठीक है, कम से कम आने वाली नस्ल को तो ये तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, मगर हम मेहनत करते रहेंगे, जुस्तजू करते रहेंगे। मगर एक बात तो साफ हो गई कि अब ये मुस्लिम वोट बैंक के बारे में बात करने वाले और फिर वोट काटने की जो बात करते हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ इनकी कमज़ोरी है। Well, let me answer your question in this way.
I am pretty much sure that majority of the Muslims have not voted for BJP. Now, what number that would be, I don't know. I'm not a psephologist, but I'm sure when the data comes out in a day or two, this will be proven right. Majority of the Muslims, maybe 80-90% would not have voted. The question that I am asking is, despite that, how is BJP winning? So who's communal over here? Who's secular over here? Am I communal? Or am I secular? Or what am I? So when the data comes out in a day or two, it will be very clear. For example, you take the seat of Deoband. BJP has won from there. My candidate was not there. This is a question which all these so-called secular parties must answer. How did BJP win from there? Bareilly, how did BJP win from there? So this is a very important question which will really disturb the secular parties now. देखिए, मायावती उस स्टेट की 4 मर्तबा की मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन उनके इस क्वेश्चन का माकूल जवाब देगा. Come again. हाँ. BJP also? Well, you cannot do it because the matter is sub judice. The matter is pending in Supreme Court. Unless until the Supreme Court decides on that, I don't think so. Nothing can move forward. So it was advantage to BJP because all the opposition parties, including SD, BSP, all of you guys stood and fought separately and not as single units. Do you think? Please go and explain to them. I am ready. आप उनको जाके बोलिए. अरे छोड़िए, उसके बारे में जोकर है वो, उसको कौन से लेता हो, छोड़िए उसके बारे में, उसका नाम मत लीजिए, कम से कम यहाँ पर तो ना लीजिए. अरे क्यों मूड खराब कर रहे अपना? अरे वो जहाँ रहेगा वो अच्छा है. यहाँ पर कांग्रेस में जब तक ऐसे लोग रहेंगे, कांग्रेस नहीं उठेगी तेलंगाना में. बहुत अच्छा है, रहने दीजिए. इस मायावती ने जो क्वेश्चन रेस किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका जवाब देगी. मेरा सवाल ये है सर, 35 सीटों पे आपने भी वहां चुनाव लड़ा है. क्या आपकी पार्टी ऐसा कोई कंप्लेन या ऐसी कोई बात इलेक्शन कमीशन में रखने जाएगी? नहीं, मायावती ने जब इस बात को रखा है तो मैं ही तो कह रहा हूं ना कि इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा. हाँ, ऐसा है ना कि सर, एक अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन. अब यहाँ पर तो अखिलेश तो अपने फादर के खिलाफ ही हो गए, तो विक्ट्री कहाँ मिलेंगी उनको? अखिलेश को खुद तो काम नहीं किए, गवर्नेंस नहीं था, करप्शन, मैसिव करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर तब बर्बाद था, और ऊपर से अखिलेश के दोनों चाचा उनका काम कर दिए पूरा. अब रहा सवाल कांग्रेस का, तो अब वो बहुत बड़ी पार्टी है भाई, 100 साल के ऊपर की है, मैं कैसा बोलूं उन पे, बड़े लोग हैं. हाँ, नहीं, दूसरे दो चाचा हैं, मतलब वैसे तो बहुत चाचाएं हैं, मगर 2 चाचा तो उनका पूरा काम कर दिए. You see, when you say development, if you open a computer, the login name would be development, but the password is Hindutva. हाँ, वो तो मेरा वही सवाल है ना हबीब, मेरा कैंडिडेट नहीं था, मैं तोड़ के जाके कान में फूंक नहीं सकता हूं, तो कैसे हार गए? ये सवाल आप उनसे पूछो आप, क्योंकि हर बार हर मर्ज की दवा ओवैसी है, तो फिर आप ये बता दो भाई यहाँ कैसे हार गए आप?
Thank you so much. I am very grateful to you for using that word. I am a boiler, not a spoiler. Well, the areas that I have gone to and the feedback which I have got so far, and also my own assessment, I am pretty much sure that majority of the Muslims have not voted for BJP. Because when you have a program of BJP which talks about Khabaristan, Shamshan, closing down